evening, everybody. Today we have a versatile personality, और वो मेरे बहुत करीब दोस्त है. So I am really proud and privileged to have him on board, Mr. Saurav Vajpayee. Mr. Saurav Vajpayee academically is a scholar. Basically, he has done his masters in chemistry, then he did his MBA, then he is pursuing his law program now. He has done quite a few diplomas, and he was a friend par excellence, a colleague par excellence, a peer par excellence in whatever opportunities we have got to work together. He is also doing his PhD, I guess, in education, and he has more than 20 years of experience in the fast-moving consumer goods (FMCG) and the telecom sector in India. Well, his interests includes meeting people and guiding and learning from them. He is an extensive traveler. He likes to travel. He likes to read books, and presently उनका जो position है वो वो है head smartphone and modern trade for Uttar Pradesh. The company is none other than Vodafone Idea. So काफ़ी बड़ा responsibility है, और ये last 2 decades or so में उन्होंने काफ़ी सारे companies में काम किया है. So students, faculty members, prospective business management graduates जो है यहाँ पे तैनात है ये वेबिनार में, उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी ये डिस्कशन के ज़रिए about the opportunities available in these 2 sectors for business management graduate. So basically we are targeting the students who are doing bachelors in business administration या फिर जो bachelors in business administration करना चाहते हैं. तो ये रहा हमारे मेहमान का इंट्रोडक्शन. विदाउट मच एडू आई गो ओवर टू मिस्टर वाजपेयी. सबसे पहले सौरभ, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अभी हालात जो बदले हैं कोविड-19 के चलते, उस सिचुएशन में आने वाले दिनों में बिजनेस मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स ये दोनों सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज किस टाइप की रहेगी और साथ में चैलेंजेस क्या रहेंगे? Okay, first of all, good evening everyone, and thank you Mani for giving such a broad introduction for me. And this is a good platform where a lot of students are also in this webinar, and they want to know what Mani has asked. So I just come directly on the point without wasting the time. तो जो मनी ने कहा कि कोविड के बाद क्या हो गया है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच वी ऑल आर आस्किंग अमंग अवरसेल्व्स. ये हुआ क्या? कोविड के पहले तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी. एवरीबडी वाज डूइंग रूटीन वर्क. वी यूजुअली गो टू द ऑफिस एट 9:30, केम एट 8:30 to 9:30. लाइफ वाज वेल सेटल्ड. थिंग्स वर मूविंग इनटू वेल डायरेक्शनल विल. नथिंग वाज न्यू. एवरीथिंग वाज एज अर्लियर इट वॉज. बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीके से सब चल रहा था. थोड़ा सा कहीं पे इनोवेशन था, जो लोग कर रहे थे सब ठीक चल रहा था. बट ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ विच इज आई विल से इज नॉट गुड. व्हाट मनी सेड कि आप उसको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में कैसे देखते हो. तो यस, इन समहाउ इन ए प्रोस्पेक्ट वी सी, वी एज ए एम्प्लॉई, बिकॉज आई एम ए एम्प्लॉई. Lot of people who are working in the private sector, they are also employees. They see it as a very bad era. अगर वो अपने से उसको देखते हैं, because they themselves are earning for their families. There are people who are surrounding them and they are dependent on them. So many people have lost their job in this scenario. This is a threat, but in the same time, there is a big opportunity which came across, like digital. मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर पे सब्जी वाला सब्जी दे जाएगा. Home delivery. And I am telling you, the people who are not doing anything, they have started their own businesses. If you need a fruit,
आप फोन पे ऑर्डर दीजिए, ऐप पे ऑर्डर दीजिए, आपके घर पे फ्रूट्स आ जाएंगे। दुनिया चेंज हो चुकी है। एंड नाउ थिंग्स वर ऑन ऐप, नाउ थिंग्स आर मोर इन ऐप। आपकी सारी लाइफ अब ऐप पे डिपेंडेबल है। आप ओला और उबर तब बुक करते थे, ऐप पे ही था। आज ओला उबर नहीं है, बहुत ध्यान रखिएगा, ओला उबर नहीं है, बट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ऐप। आप यू विल सरप्राइज टू नो दैट इन इंडिया 15-20% banking transaction were happening in 2010-2015. Now in COVID time, which was 45% before COVID, the average was 45%, it has grown by 20%, 25% in COVID time. So this is the power of digitization. I will add the word money and all my colleagues. It is a over part of digitization. What we said, we tried to do it in last 10 years, 5 years, but now it is over digitization. Everything is on your app, mobile, data. Even people used to visit to the colleges. I have never thought that I will connect so many people in a way. Money is there, money is sitting so long, and I'm sitting here and we are connecting and we are discussing each and every one. I have never thought that I will start working from home. Never thought. And work will happen. Work is happening. So, is there need from the offices? There is a question mark. When people are working from their homes, work is happening, work has started, everything is there. So, new way of thinking, new innovation, new thought, new technology, everything is surrounding. हमारे सब तरफ अपॉर्चुनिटीज हमारी आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, people are into that. तो थ्रेट तो था, थ्रेट तो चला गया, बिकॉज दैट वॉज नॉट इन अवर हैंड। बट उस थ्रेट में जो अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा है, देन ओनली वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर मैन। So that is my point on your question, Mani. If you want to add something or further I can move, then you can tell me. Mani, you are on mute. Mani, you are on mute. I'm sorry, Saurabh and audience. आपने सही बात है, मतलब आपने जो जिक्र किया है वो तो मैं भी सोचता हूँ कि इतने अरसे बाद, तकरीबन 25 साल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, और वो भी एक वर्चुअल मुलाकात हो रही है। और आप लखनऊ में बैठे हैं, नवाबी स्टाइल से बैठे हैं लखनऊ में एकदम, और हम यहाँ दुबई में बैठे हैं। तो मतलब ये जो रूबरू होगी हमारी रब्ता जो होगी, वो मतलब वर्चुअल मीडियम के जरिए होगा। या इनफैक्ट थिंग्स हैव चेंज्ड एंड देयर इज अ न्यू नॉर्मल। जैसे मैं अगर मेरा प्रोफेशन का जिक्र करूं, जैसे आपने बोला इंडस्ट्री का, मैं टीचिंग एंड लर्निंग में, भले ही मैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का इस्तेमाल करता था, ब्लेंडेड लर्निंग भी इस्तेमाल करता था, लेकिन इस पैमाने पे नहीं कि भाई पूरा सेमेस्टर 24/7 कि भाई आप ऑनलाइन लगे रहो, इस तरीके से तो कभी नहीं किया था। तो यह नया जरिया क्या है, चैलेंजेस जरूर है, जैसे मिस्टर वाजपेयी ने हाईलाइट किया है, लेकिन उसके इर्द गिर्द हमें ये भी समझना चाहिए, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स है, जो मतलब कैरियर अपॉर्चुनिटीज को नॉक कर रहे हैं, कि यहाँ पे काफी सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज उभर के आने वाली है आने वाले दिनों में। सौरभ, बहुत अच्छा आपने जिक्र किया है। मैं थोड़ा सा टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक पहलू जो है वो बताता हूँ आपको, जो अपडेट किया गया था जून 2020 में, और इसमें कह रहे हैं कि देयर इज एन एडवांटेज इंडिया। पहला जो रीजन दिया है कि देयर इज रोबस्ट डिमांड बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा कंज्यूमर्स ग्लोबली, हैज द हाईएस्ट डेटा यूसेज पर स्मार्टफोन एट एन एवरेज ऑफ 9.8 गीगाबाइट पर मंथ। और दूसरा रीजन जो बोला है ये रोबस्ट डिमांड का, इंडिया रैंक्स सेकेंड इन टर्म्स ऑफ number of telecommunication subscription, internet subscribers and app downloads globally। तो ये तो काफी बड़ा स्टैटिस्टिक है और आपके इंडस्ट्री से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे अभी ऑडियंस है उनको ये स्टैटिस्टिक्स के तहत जो अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं इस पे थोड़ा गौर कराए। राइट, तो मैं थोड़ा सा बैक पे जाना चाहूंगा मनी, बिकॉज इसको कहीं ना कहीं से कोरिलेट करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज द डेटा, दीज आर द वर्ड्स, दिस इज हैपेंड
these things are happening. So ये तो डेटा पॉइंट है. लेकिन मैं इसको इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ. मुझे याद है जब मैंने सन 2000 में 2000 इन ईयर में MBA कंप्लीट किया था मनी के साथ 2001 में, तो मुझे नहीं याद है कि मेरे पास में मोबाइल फोन था. मेरे पास से घर पे फोन आता था जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे. फादर यूज्ड टू कॉल मी, हाउ आर यू एंड ऑल. व्हाइल मोबाइल फोन वर लॉन्च इन 1996-98. तो 2G से शुरू हुआ टेलीकॉम इंडस्ट्री. 2G फोन से शुरू हुई, आज 4G 5G फोन की बात हो रही है. एंड आई एम टेलिंग यू, 2G से 3G आने में 10 साल लग गए, 14 साल लग गए. 2G से 3G आने में 10 साल लग गए, 10 ईयर्स. 3G से 4G आने में 3 से 4 साल लगे. और 4G से 5G आने में मुझे नहीं लगता बहुत टाइम लगने वाला, बिकॉज ऑल टेक्नोलॉजी इज रेडी. सो नाउ यू हैव टू सी एवरीबडी हु इज देयर इन द कॉल दैट जो ग्रोथ हो रही है, इनोवेशंस जो आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप उसमें देखेंगे अब टाइम लैगिंग नहीं है. बिकॉज अब इतनी चीजें अवेलेबल है, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप इनोवेशन बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं. आई हैव अ फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड, अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट द जॉब. ही वाज वेरी अपसेट. देन ही सैट 3-4 days बैक. He thought कि हमें क्या करना चाहिए. He said कि मैं तो कुछ करूंगा because I can't live like this. What he did, he started agency where he has taken work of all the telecom sectors, all banks and all insurance agencies. Now, in a single umbrella, he is dealing with all the bigger groups. Now, believe me, in a week of time, he has added 50 customers who has taken health and term plan. This is the opportunity. This is the opportunity in this time. Where he was earning 1 lakh rupees in a month, he will earn 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh and infinite money while adding the customers in his umbrella. So this is one example. I just want to quote one thing, that what money has clearly mentioned that opportunity is lying everywhere for us. Now I come back on the point of data which money has referred. जब 2G लॉन्च हुआ तो लोग फोन पे बात करते थे, कॉल करते थे, एक दूसरे से बहुत डिस्कशन करते थे. बात किया, कुछ है नहीं, फोटो कैसे भेजते थे तो मुझे याद है डोंगल लगाते थे, या पिक्चर के लिए लैपटॉप में फोटो आती थी, फिर वो मेल पे ट्रांसफर करते थे. फिर धीरे से 3G लॉन्च हुआ. 3G लॉन्च हुआ तो आपने डेटा यूजेज शुरू कर दिया. डेटा यूजर्स, लोगों ने सोचा कि यार इससे तो हम यूट्यूब भी देख सकते हैं, न्यूज चैनल्स भी देख सकते हैं, मेल भी फोन पे चला सकते हैं. वेरी नाइस. तो सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया में है वो है जो रूरल आबादी हमारी 60 से 70% है, उनको आदत कैसे लगाई जाए. ठीक है, वी आर लिविंग इन इंडिया एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच. बहुत डिफिकल्ट होता है. आप ये सोचो हिंदुस्तान लीवर को कितना टाइम लग गया पेनिट्रेशन करने में. आप जो रूरल आबादी में उनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन करने में 20 साल लग गए. दे कुड नॉट डू इवन. वो लास्ट 10 ईयर्स में भी कह रहे थे हम 100% पहुंचे नहीं है. इतना टाइम लग गया. फिर टेलीकॉम सेक्टर के लिए दैट वाज वेरी मच डिफिकल्ट बिकॉज रूरल में तो लोग फोन जानते नहीं थे. बहुत ही डिफिकल्ट है इंडिया के लिए. तो 3G भी चल गया, 20 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा था. देन नाउ द न्यू कंपनी केम इनटू द पिक्चर विच वाज जियो. एंड वी ऑल नो दैट इंडिया में अगर आप फ्री कुछ भी कर देते हो, इट इज द क्लियर एग्जांपल ऑफ फोन. जो रिलायंस ने 500 रुपए में फोन लॉन्च किया था. नाउ डेटा इज फ्री. नाउ डेटा इज फ्री मीन्स हैबिट ऑफ ए कंज्यूमर टू यूज द डेटा इन एट द मोबाइल फोन for anything like app, movie, pictures, for anything. This is what the power of data. And now believe in me that the penetration, now there are 97-98 crore subscribers and 85% people are using the data in their mobile phone, which is the biggest victory of all telecom operators. तो दिस इज ऑल सराउंडिंग विच इज हैपनिंग. मैं तो अगर बात करता हूँ आपसे तो मैंने तो कभी मोबाइल बैंकिंग की नहीं, बट मैं लास्ट 2 ईयर से कर रहा हूँ. मैंने कभी ऐप के थ्रू पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ. मैं बैंक जाता नहीं हूँ.
मेरा आधार, आप सोचिए कि आपका आधार मोबाइल से लिंक है, आपके डेटा से लिंक है, आपका पैन लिंक है, आपकी दुनिया जो है वो डेटा मोबाइल से इतनी सिमेंट इतनी बंध के रह गई है कि आप उससे निकल नहीं सकते हो बॉस, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन। आपको रेलवे टिकट करना है, आपको आपके पास ऐप है, आप उससे टिकट कर सकते हो। आपको कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं आप उसके थ्रू कर सकते हो। आप आज आप देखिए वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, आप सारी की सारी दुनिया, आप अमेजॉन की बात कर लीजिए, अमेजॉन करिए, आप नेटफ्लिक्स देखिए, G5 देखिए, आप अपने फोन पे खुद अपने सीरीज देख सकते हैं, सीरियल्स आपके नहीं आ रहे टीवी में, आप फोन पे देख लीजिए। पॉलिसी बाजार में ढेर सारी पॉलिसीज आप उनको परचेज कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया हो गई है, इतना कुछ हमारी इर्द गिर्द चल रहा है। आई एम टेलिंग यू दिस दैट इट विल नेवर एंड एंड इट विल बूम लाइक एनीथिंग। आप जो कह रहे हो कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन डेटा यूजेस, इंडिया विल बी नंबर 1 इन कमिंग डेज, बिकॉज जितना डिपेंडेंसी इंडिया की हो गई है आज के डेट में डेटा पे, एंड विच इज गुड, बिकॉज आई हैव रेड वन आर्टिकल मनी वेयर farmers used to come to purchase seeds to their surrounding tehsils and districts. Believe करोगे आप 30%, there is decrease of 30%. Farmers, they are not going to purchase any seeds. The seeds are coming to their villages. वो सिर्फ ऐप से ऑर्डर देते हैं और उनके यहाँ सीड्स उनके विलेजेस में पहुंच जाता है। कॉस्ट क्या बची? उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बची, उनका आना जाना बचा, उन्होंने ऐप से ऑर्डर दे दिया। नाउ दे आर utilizing their time into the farming. So this is all. This is the power of data. This is the power of telecom. This is the power of new world. I always say this is a new world. Because I have been working into telecom for last 14 years. I have never thought ये होगा, कभी नहीं सोचा था मैंने। It will happen and it is happening and we are adopting it. On daily basis we are adopting it. New things are coming into the picture. So my dear friends, I just want to say one thing, that please see lot of opportunities surrounding you. Please search, please view, please look after what is happening. ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा होगा, everything is, और आपको उसी में से बहुत सारी चीजें निकालनी है। मैं तो रोज न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कि एक IT का स्टूडेंट था, उसने आज एक नया ऐप लॉन्च कर दिया, यहाँ पर ऐसा हो गया। तो जब पीपल आर देयर आर वेरी लेस स्टूडेंट्स हु वांट टू डू द जॉब। They want that मैं कुछ अपना क्यों नहीं शुरू करूं, because I have mind, I have future, I am young, why I cannot do it? Lot of things are there. So आप सबको जो मनी ने कहा है, फिर से मैं मणिशंकर की बात को हमेशा को रिलेट कर रहा हूँ इस डिस्कशन में, see the opportunities, you will find lot of things. Yeah, Mani, over to you. सही बात है। आपने बहुत अहम बात को आगे बढ़ाया है कि जो नए सिरे से चीज़ों को देखना है, बिल्कुल वो सही है। एंड विद द इमरजेंस ऑफ दिस सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव अदर देन रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी। और आने वाले दिनों में वो बढ़ने ही वाली है। भले ही वैक्सीन निकल जाए, हार्ड इम्यूनिटी हो जाए, सब होता रहेगा, लेकिन जो एक नया नॉर्मल जो कह रहे हैं हर इंडस्ट्री में आएगा, वो नया नॉर्मल में मैं एकदम आपके साथ सहमत हूँ कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लिविंग, चाहे वो पर्सनल लिविंग हो या प्रोफेशनल लिविंग हो, वो काफी ज्यादा उसमें दारोमदार रहेगी। तो बात को थोड़ा सा दूसरे तरफ ले जाते हैं, जो आपने आखिर में जिक्र किया है सौरभ, अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स जॉब एंड विलिंग टू हैव देयर ओन वेंचर। तो ये जो नए हालात में खास तौर पे जब टेक्नोलॉजी उभर के आई है और डेटा यूसेज बढ़े हैं, तो आपको क्या लगता है एंटरप्रेन्योरशिप में एक उछाल आएगा इंडिया में? अब आ रहा है उछाल। अब मैं अगर आपको अपने सराउंडिंग्स की बात करता हूँ तो उछाल है, बिकॉज इफ आई टॉक टू एनीवन हु इज ग्रेजुएट और ही पास्ड आउट, ही हैज डन इंजीनियरिंग, so I want to do something from my own self. So I said, what do you want to do? What do you want to do? Something जो मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? I said, what will do? Because you don't have money, you have to go to the bank to borrow the loan. क्या करोगे? कैसे करोगे? So he said कि see, people are very smart. They search lot of things at Google. क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कितनी हमारी अर्निंग होगी? These are small things. Like there is lot of opportunity of packaging which is going on, because आपको पता है ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत हो रही है।
ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैकेजिंग इज वन ऑफ द वेरी वेरी वास्ट मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, जहां पर आपको समझ जाना है, क्योंकि यहाँ पर तो खरीदने तो आ नहीं रहा, टाइम होता है, यहाँ पर ट्रेडिंग हो गई है, पता चला आपने ट्रेडिंग कर ली है और ट्रेडिंग में सामान जाना है, उसकी पैकेजिंग होनी है। तो दिस इज न्यू वेंचर विच इज कमिंग। तो मैं फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हैज टेकन पैकेजिंग वर्क, पैकेजिंग करनी है, भेजना है, सामान जाना है, कुरियर होना है, one of the big thing which is coming into the picture, and they are earning very good handsome money and they are free. They said ki I have taken this packaging, I have started this venture, now I have a lot of opportunities further. So I say as a person if you want to ask, yes, there are a lot of opportunities, there are a lot of things which are surrounding to you. Like I will tell one more example. I have met with the people during last few days. He has opened a shop, and shop of vegetables. Good person. He was earning handsome money when he was in job. He has fruits, vegetables at his shop. Good liquidity shop where you can visit and say कि बहुत से order कर दो. So he said कि Saurabh sir, I have started this a few days back, and there is an app. He has shown me there is an app. There is a discount in app. If you purchase 3 times, you will get good discount on it. You can click this, you will purchase this, whatever price in the market, the same price, the person will come and he will deliver at the home fresh vegetables, fresh fruits. He was an engineer and he has worked 10 years in Noida. He has started money his own business and he is very happy, I am telling you, and he is earning good amount of money. So these are the small things which are coming into the picture, and which I think in coming days, we'll also see that things will happen like this. Things will happen like this, and it is happening across. Where you can take your appointment through apps only. आप डॉक्टर क्या आज कहाँ जा रहे हैं लोग, बट फोन से ही तो गूगल मीट पे या किसी तरीके से डॉक्टर से बात करते हैं, मेडिसिन को ले लेते हैं। डॉक्टर को जरूरत भी नहीं रहेगी किसी दिन, मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर को क्लिनिक पर बैठने की भी मनी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी दिन। वो फोन से या व्हाट्सएप कॉल से या गूगल से ही वो कस्टमर पेशेंट को देख लेगा। बहुत ही इमरजेंसी पेशेंट होगा तो हॉस्पिटल जाएगा, क्लिनिक की जरूरत नहीं रहेगी। यू हैव टू पे द मनी टू द डॉक्टर डायरेक्टली इनटू हिज ऐप। So these are the things which are coming money across, and I see lot of opportunities. People who are there, students who are there in the call, they have to be very vigilant. They should see how the things are happening. They should search in the market. Whenever they are outside, they should search ये कैसे हो रहा है, कुछ नया दिखा तो ये कैसे कर रहा है, ये कैसे होता है, go more into the thing. And when you will realize, yes, ये तो हो सकता है और easy है, you will find and you will, I am telling you, this is one point I am telling you, if somebody will start his own thing in coming days, he will say कि हाँ सौरभ वाजपेयी ने ये कहा था, you will be more happy than doing a job. Job is a learning, जॉब से आप करते क्या हो, जॉब से सिर्फ आप सीख रहे हो, सिर्फ आप सीख रहे हो, because that is a fix. But when you start your own thing, you have lot of things to do by your own, by your mind, by your heart, by your body, anything you can do. Job is just a learning. This is my thought. More because money, don't think that in the COVID time I am talking more for the entrepreneur. It's not like that, but yes, there are opportunities, people should see it. It does not mean that we are working into multinational companies is a bad thing. It's a very good thing. You are scaling up, you are making your careers, that is the right thing. You have something in your hands, you have some society where you can say that I am this, I am this. So this is good thing. But always searching opportunities in this time. This is all. सही बोला आपने, बहुत बढ़िया हाईलाइट करा है। मतलब जो आज के ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड मतलब मौका सामने उभर के आया है बच्चों के लिए या इवन प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि वो स्विच कर सके। थोड़ा हम मैंने एक चीज बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल शुड नॉट स्टार्ट. Experience is always a good thing. See, if I have experience of 20 years and I do something for myself, then obviously I have good progress, good success into that. So if
like Hindustan Lever is, I know when I was in Hindustan Lever for I worked for 1 year there. लोग कहते थे कि यार ये तो एक लर्निंग एजुकेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है, आप जाइए यहाँ से सीखिए और कहीं और जाइए. Yes, you should work into multinational work there, learn lot of things, understand the processes, कैसे काम होता है, क्या होता है, process को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है. हाउ यू डील विद द पीपल, हाउ यू टॉक टू द पीपल, हाउ यू बिहेव इन द डिफरेंट सिचुएशन, दिस इज ऑल आल्सो इम्पोर्टेंट. तो एक्सपीरियंस एंड न्यू थिंग्स अगर आप इसको कंबाइन करते हो, आई थिंक then there will be a multiple successes which will come. Yeah, Mani, I'm sorry I interrupted you. No, it's perfect. अभी जो हमारे होटल मैनेजमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है प्रोफेसर सुजय शाह, काफी सीनियर प्रोफेसर है. उनके बच्चे वर्ल्ड के चारों तरफ फैले हुए हैं. फ्रॉम द फर्स्ट लीग ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स इन इंडिया, और वो पढ़ा चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, IHM में, सॉरी. उन्होंने एक पॉइंट जो जिक्र किया है, आई वाज अबाउट टू कम टू दैट. गूगल ने अभी सुंदर पिचाई ने बहुत बड़ा एक ऐलान किया है कि 75,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया में और डिजिटल बिजनेस एंड डिजिटल वे ऑफ लाइफ. और अब आप ये इंडस्ट्री में काफी अरसे से हो, थोड़ा बताओ कि ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगा किस टाइप का इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसके चलते किस टाइप के जॉब्स या एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज उभर के आने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स में आने वाले दिनों में. ओके, देखिए इन्वेस्टमेंट, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कोई कब कहाँ करता है. फिर से मनी आपके एक ही पॉइंट याद आ रही है, अपॉर्चुनिटी. मैं वहीं पे इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है. एंड गूगल को लगा ये कि इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, डेटा कंजम्पशन है, पीपुल हैव मूव्ड इनटू डेटा, पीपुल आर नाउ ऑर्डरिंग फ्रॉम देयर ऐप. सब कुछ उन्होंने ऐप से करना शुरू कर दिया है, पढ़ाई उन्होंने ऐप से करनी शुरू कर दी है, वर्क फ्रॉम होम उन्होंने शुरू कर दिया है, ऑफिस उनके बंद हो जाएंगे बहुत सारी कंपनीज के. तो डेटा तो ये जो चल रहा है ये तो चलता रहेगा. अब क्वेश्चन जो मनी कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों, देखिए अभी आज की डेट में जो 3 कंपनी है, वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल और BSNL को भी आप पकड़ लीजिए. चलिए, एक कैपेसिटी होती है टेक्नोलॉजी की. आज मैंने टावर लगाया, उस टावर की कैपेसिटी है 5,000 कस्टमर्स को लेके चलने की, जिसपे वॉइस भी होता है, डेटा ट्रैफिक भी होता है. डेटा और वॉइस ट्रैफिक दोनों के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. वॉइस अलग चलता है, डेटा अलग चलता है. अब डेटा अलग चल रहा है, अगर सपोज करिए वो 100 के 100 कस्टमर डेटा यूज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी 100 की है, तो देयर विल बी कंजेशन. इन द सेम वे अब वॉइस का एक उसमें लगा हुआ है, वॉइस में सपोज करिए देयर आर 200 पीपल हु हैव द कैपेसिटी टू टॉक, और वहां पे 250 लोग हो जाते हैं, तो क्या होगा. तभी आप लोग कहते हैं सर कॉल नहीं लग रही है, कॉल म्यूट हो रही है, कॉल कनेक्शन में इशू आ रहा है, डेटा स्पीड स्लो हो गई. ये कैसे होगा. कंपनी के पास तो लिमिटेड फंड्स है, 2G से 3G पहुंच गए, 3G से 4G टेक्नोलॉजी लगा, टेक्नोलॉजी तो बढ़ानी पड़ेगी बहुत, और पैसा तो लिमिटेड है. तो कंपनीज वेट करती हैं, इनवाइट करती हैं, इन्वेस्टर्स को लुभाती हैं, प्लीज कम टू इंडिया, सी द अपॉर्चुनिटीज. लाइक इफ गूगल हैज कम एंड ट्राई टू इन्वेस्ट, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव शोन देम that this is the opportunity in next 10 years, 5 years in India. So वो आकर के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे. इन्वेस्टमेंट इसलिए करेंगे जिससे जो आज 4G है वो 5G हो जाए और ज्यादा डेटा कंजम्पशन बढ़ जाए. जब डेटा कंजम्पशन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए जब आज 100 में से सिर्फ 75 लोग 60 लोग डेटा यूज कर रहे हैं, जब 100 के 100 लोग डेटा यूज करने लगेंगे तो क्या होगा. ये होगा कि जो जियो ने, मैं जियो का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि जियो हैज प्लान टू डू दिस, दे हैव प्लान्ड इन नेक्स्ट 2 years टू डू दिस. उनके जो जियो सेंटर्स रूरल आउट गांव में खुले हुए हैं, वहां पर वो उसको स्टोरेज बना देंगे स्टॉक्स का. तो गांव का जो किसान होगा वो सामान खरीदने किसी तहसील में नहीं आएगा, टीवी उसको उसी गांव में मिल जाएगा. जियो के स्टोर से जाएगा, जियो के स्टोर से ले आएगा, जियो के स्टोर्स के लोग उसको ऐप चलाना सिखा देंगे, वो ऐप चलाएगा, ऑर्डर देगा, वहां से उसका स्टॉक आके जियो सेंटर में रख दिया जाएगा.
जियो सेंटर से वो स्टॉक लेके चला जाएगा। सो द अपॉर्चुनिटी इज कि जियो सेंटर एक रिटेल आउटलेट की तरीके से पूरे इंडिया में खुल जाएंगे। सो इफ पीपल आर इंटरेस्टेड टू टेक द जियो सेंटर्स एंड जियो पॉइंट्स इन कमिंग ईयर्स, यस। So money, this is the opportunity where they will get the handling charges, they will charge money from the customers and they will earn good money. So these Jio centers will work as a retail outlet. So हो सकता है 1000 हो जाए, हो सकता है 20,000 हो जाए, हो सकता है इंडिया में 50,000 हो जाए. Anything is possible. So that is one opportunity which I look in the coming years when Google will invest money to go for new innovation in technology and people will go 100% digital. Then yes, this is one of the factors which will come as a technology. Number one. Number two, government has planned, government के basic schools होते हैं, यूपी में बहुत है, अब बाकी जगह भी होते हैं, रूरल में बेसिक स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर स्कूल सी स्टिल जो गांव के बच्चे वो आते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है, he or she comes and they teach them. What will happen? This all will go into privatization. Entire government schools will go into privatization. Now what will happen? That all will be digitized. All will be digitized. How and why it will happen? Because the reach and the facilities which is being provided by the government of India, by the state government of India is very very bad and less. आप जाओगे आज भी स्टूडेंट उसी मैट में बैठ के पढ़ रहा होगा. They have less facility. Now it will come into privatization. These all students will behave like a CBSE, ICSE board students in the state board of systems. क्या होगा? जैसे ही आपका गांव, रूरल जो गांव है आपका, उसमें डेवलपमेंट शुरू होगा जियो सेंटर्स के आने के बाद में, these जियो सेंटर्स all will be connected to all the schools. What they are planning, the planning is very big because I have just read it. That's what I am sharing it. All schools will be connected to Jio centers. All students will come at the school for 3 hours. The person who will only run the LCD TV and all the students will learn from that the way teachers and others are teaching them. It will happen in coming time. काफी लंबी बात बता रहा हूँ but it will happen. तो मैं अपॉर्चुनिटी को इस तरह इंडिया में देख रहा हूँ. मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 5 साल में मैं शायद कभी सब्जी के ठेले पे सब्जी खरीदने जाऊंगा, या मैं किसी स्टेशनरी शॉप पे बुक खरीदने जाऊंगा, या मैं किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे जाऊंगा, या मैं कभी बैंक जाऊंगा. तो आज आप बैंक की जितनी शाखाएं देख रहे हैं, हो सकता है उससे आधी शाखाएं रह जाए. सारा काम आपका फोन पे होने लगेगा. मुझे नहीं लगता कि कोई रिचार्ज कराने के लिए फोन का मैं किसी आउटलेट पे मनी जाऊंगा. एवरीथिंग विल कम इनटू द फोन एंड फॉर दैट कंपनीज आर देयर. अगर पेटीएम एक कंपनी है तो मनी शंकर, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. एंड माय फ्रेंड्स, अगर पेटीएम एक कंपनी है तो वहां पर कितने लोग जॉब कर रहे हैं सोचिए आप. ई मैप है, तो पीपल आर देयर हु आर मैनेजिंग इट. So these are the opportunities surrounding जो आ जाएंगी and different facilities, different task forces, ये सबके साथ हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़नी शुरू होगी. That is how I see. राइट, बहुत जबरदस्त आपने मतलब एनालिसिस किया है सौरभ, और मतलब बर्ड्स आई व्यू कहना चाहिए, उस हिसाब से मतलब आपने ये चीज को आगे रखा है. अब मैं थोड़ा सा अलग हटके आपसे पूछना चाहता हूँ. आप काफी अर्से से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में थे मतलब आप, और अभी टेलीकम्युनिकेशन में है, रिक्रूटमेंट में आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो. हमें मालूम है ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट कर चुके हैं आप, अभी खासतौर पे यूपी एंड नॉर्थ इंडिया में करते हैं. तो आप जब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रेजुएट्स को देखते हैं और आपकी इंडस्ट्री में या आपकी कंपनी में लेना चाहते हो, कौन कौन से स्किल सेट्स पे ध्यान देते थे अभी तक, और कौन कौन से स्किल सेट्स अभी एडिशनल चाहिए रहेगा आपको नए एम्प्लॉयज में, उससे थोड़ा अगर आप विश्लेषण करेंगे तो बच्चों के लिए काफी वो इम्पोर्टेंट रहेगा. राइट. तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है. मुझे याद है कि जब 2001 में मैंने MBA कंप्लीट किया था और हिंदुस्तान लीवर में आई डिड ए प्रोजेक्ट फॉर 1 मंथ, और तो मैं सोचता था कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, मुझे इसमें जॉब लग जाए. तो आई वेंट देयर, वहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन, टूली इंटरनेशनल इज ए होटल देयर हो रहा था. मुझे पता चला, आई वेंट देयर, आई
appeared in written examination. I passed it and then I went for the final interview. I got the selection. So I have never thought कि मुझ में क्या स्किल होनी चाहिए, क्या चाहिए. I don't know. That was all, you know. मुझे बताने वाला कोई नहीं था. शायद मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा भी करता तो कुछ और हो सकता था. That was all natural. But yes, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं अभी या जो सीनियर्स होते हैं, वो जब आपको बताते हैं तो मुझे लगता है कि आप सबको उस पर काम जरूर करना चाहिए. तो मनी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि आपका इंटरव्यू होने जा रहा है और कोई आपको एक टिप दे दे और वो टिप आपका इंटरव्यू निकाल दे तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होता है. कुछ मिसिंग होता है. जैसे कि मुझे याद है कि वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉट ए जॉब 5 years बैक बिकॉज हिज इंट्रोडक्शन वॉज वेल सेटल्ड लाइक इंटरव्यूअर वॉज वांट. जैसा वो चाह रहा था सेम पैटर्न में उसने इंट्रोडक्शन दे दिया. So I said, how you have done? Because he said, one of my boss has told me that you have to start introduction like this, and he was very happy because none of the candidates has appeared like this, and he has been selected. So small tips in interviews, in your skill development, works lot for you, all newcomers. तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखता हूँ FMCG और टेलीकॉम में जो भी न्यू कमर्स आते हैं तो पहले तो उनको अपनी चॉइस जरूर डिसाइड कर लेनी चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी न्यू कमर. सेल्स में जा रहे हैं, मार्केटिंग में जा रहे हैं, बिकॉज सेल्स और मार्केटिंग अलग अलग है, ध्यान रखना. मार्केटिंग इन टेलीकॉम इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज जहां पर आप प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट को देखते हो, कस्टमर बिहेवियर देखते हो, कस्टमर की यूजर पैटर्न्स देखते हो, सेगमेंटेशन देखते हो, डिफरेंट थिंग. सेल्स इज प्योरली सेल्स. जहां जाते हो आप, यू आर इन मार्केट, यू आर मीटिंग टू द पीपल, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स एंड ऑल. So please decide if you want to go into sales, if you want to go in marketing, finance, commercial, whatever. There are 3-4 sectors. Now, for all, this is a common. First of all, in an interview, you should always see what is suited for you. Like, if you can speak good in Hindi or English, you can go. आप कभी कंपेयर मत करो कि मुझे हिंदी या इंग्लिश में बेटर. कम्युनिकेशन इज द बेटर पार्ट बिकॉज मुझे पता है कि आई थिंक दैट व्हाट इज द बेस्ट फॉर द अदर. दूसरा जो सामने वाला बंदा है वो मेरी लैंग्वेज किस उसमें समझ सकता है, 1, और मैं किस में समझा सकता हूँ, 2. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. आप कभी मत सोचो कि इफ आई एम स्पीकिंग हिंदी वो क्या सोचेगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. The better way how you can communicate to them. This is the one of the very important skill. I am telling you, lot of people confused and they lost interviews. If you have a skill of speaking good English, please go ahead with that. If you have a skill of speaking very good Hindi and English, mix of that. If you can speak Hindi very well, go for that. One of the very important skill is communication. मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा आपको लिंक करके बताया है. Communication is very important because what you have done you should know and you should communicate. Number 1. Number two है how you can keep yourself before them as an innovator. Like if you read something, if you read lot of books, if you see trends, if you go to the Google, search for lot of things, search for the companies, search for that company products and all. If you can give some ideas, some thought there, that is also the second victory for you in first interview. So communication, and second is thought and new innovation. Third skill, which is most important, is that how you can show them that you are important for them. और वो स्किल बहुत कम लोगों में होती है. बहुत, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही कम लोगों में होती है कि बहुत आई हैव डन MBA, आई हैव स्पेशलाइज फॉर दिस, मैंने 6 months की समर ट्रेनिंग यहाँ की है, मैंने इसलिए की थी. इसको आप कैसे लिंक कर रहे हैं, मीन्स लिंकेज. आप अपने को कैसे बता रहे हो कि बहुत आई एम फिट फॉर दैट. तो कम्युनिकेशन, इनोवेशन एंड थॉट एंड योर फिटनेस, दी 3 skills शुड बी डेवलप्ड. थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट लग रही है आपको, but it is very important. If anybody work on these 3 skills, I am telling you boss, you are so confident you can beat any. आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. I have seen people come to me for interview, वो उनका इंटरव्यू नहीं होता है, वो बात ही और चली जाती है. कभी कभी जो इंटरव्यू देने वाला होता है ना, वो बात को ऐसी जगह ले जाता है कि आप उसको इंटरव्यू में लेते हो, आप ऐसी जगह चले जाते हो, बहुत आपको पता नहीं. वो इंटरव्यूअर कोई
तो दादा यार इज अ डिफरेंट पर्सन, टेक हिम। आपको वो अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी है, और ये 3 बेसिक थिंग्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। प्लीज डू दैट। आई एम टेलिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर मोटिवेशन लेवल, योर थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग विल इंक्रीज। और ये अगर शुरू से हो गया, देन आई एम टेलिंग यू कैन बीट एनीवन। So this is from my side, Mani. राइट, सही बात है। मतलब एक चीज जो आपने गौर किया है, और वो तो हमेशा हम लोग एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर उस पर एम्फेसाइज करते हैं कि भाई जो किताबों में सीख रहे हो वो काफ़ी नहीं है, और जो गले में लटकाओगे सर्टिफिकेट, वो सिर्फ एक गेटवे रहेगी, और गेटवे से आपको बस अंदर आने की एक परमिशन मिलेगी। बस आगे की जो सफ़र है, वो सफ़र में बाकी सारे चीज़ें ज़्यादा अहमियत रखेगी, और वही चीज़ आपने बताया है बखूबी से। तो मैं अभी थोड़ा सा जाता हूँ एफएमसीजी सेक्टर में। Yes. सौरभ, और एफएमसीजी में आपने काफ़ी सालों तक काम किया है, मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है एफएमसीजी में। तो ये बताइए, अभी जो बदले हालात है, वो हालात में डिजिटल वाली चीज़ें आ जाएगी, तो क्या ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल जो बोलते हैं हम लोग, जो रूटीन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है कि भाई इंटरमीडियरी से मीट करो, मार्केटिंग कन्वेंशनल वे से करो, सेल्स भी कन्वेंशनल वे से करो, वो चीज़ क्या विलुप्त हो जाएगी कि उसको नए सिरे से करना पड़ेगा? क्या आपको क्या लगता है? देखो मैंने, मुझे एंड माय फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है या लग रहा है अभी थोड़ा सा तो गिरावट आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी, बिकॉज आदत लगते लगते थोड़ा सा हमारे लोगों को समय लगता है। तो आज भी अभी भी मतलब सब कुछ तो होगा, तो अभी भी हम शॉप पे चली जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में आप ये सोच सकते हो, ये जो कन्वेंशनल वे ऑफ सेलिंग है, जिसको हम कन्वेंशनल वे ऑफ सेलिंग पैटर्न बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं 50% यस विलुप्त होगा, बिल्कुल होगा। और लोग जो है वो मॉडर्न परचेजिंग और सेलिंग बिहेवियर पे आना शुरू कर देंगे। इट विल हैपन। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ, क्या जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, चलिए आई वाज इन कानपुर जोन, अर्लियर आई वाज एडीएम फॉर कानपुर जोन। कानपुर सिटी में देयर वाज 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोग समझिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे प्रोडक्ट को। 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे, 10 करोड़ का बिजनेस होता था। कोविड के बाद में वो 6 के 3 रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि हमने ये सोचा कि हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है। मेरे 3 लोगों की, जब मेरा 20% बिजनेस डिजिटाइजेशन पे था, आज 50% बिजनेस डिजिटाइजेशन पे चला गया है, तो मुझे ये 3 लोगों की जरूरत नहीं है अभी। अब मैं 3 लोगों से ही 10 लोगों का बिजनेस करा लूंगा, तो वो होगा मणि, बट धीरे धीरे होगा। मुझे लग रहा है आगे 5 से 10 साल में आप देखोगे कि यस, वो जो कन्वेंशनल वाला चीज था वो धीरे धीरे विलुप्त होगा, और आपको मॉडर्न उस पर आना ही पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ, यूपी इसकी बात कर लेता हूँ। यूपी इसमें जो रिचार्ज था, जो कस्टमर खुद करते थे थ्रू डिजिटल वे, दैट वाज 25 to 30% इन Feb 2020 का डेटा एग्जिट का बता रहा हूँ आपको। एंड यस्टरडे जो डेटा है दैट इज 68%। सो आप देख रहे हो कि कितना बूम हो गया है वो। अभी जब मार्केट खोलना शुरू हुई, थोड़ा सा गिर गया, 68 से 60% पे आ गया है, बट वो 25 पे नहीं आया है। तो मुझे लग रहा है यस, कन्वेंशनल में बिल्कुल चेंज होगा, और आपको 5 से 10 साल में बहुत चेंजेस दिखने को मिलेंगे। तो हमें कन्वेंशनल वे को छोड़ना चाहिए, और हमें न्यू डिजिटल वे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ सोचना चाहिए, और उसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखनी चाहिए, जो मुझे लगता है। जैसे कि मैं अगर देखूं कि अगर मुझे आज की डेट में कोई पॉलिसी करानी है, हेल्थ या टर्म या कार इंश्योरेंस कराना है, तो मुझे कहीं जाना नहीं है। मेरा अकाउंट भी टैब में ओपन हो जाता है, मेरी टर्म की या हेल्थ की पॉलिसी भी आकर के एजेंट फोन पे ही कर देता है। मुझे कहीं जाना नहीं होता, मुझे किसी पॉलिसी इंश्योरेंस ऑफिस नहीं जाना पड़ता, कहीं बैंक नहीं जाना पड़ता। तो कन्वेंशनल में खत्म ही हो रहा है, सब मॉडर्न पे आ रहा है। And for that, yes, banks are recruiting people also, because field पे जाने के लिए तो लोग रहेंगे. So people are there and they are chasing to the customers, and there are good executives. They are visiting high-profile customers and giving services to them at their houses. सही बात है, बिल्कुल सही बोला है सौरभ आपने। मुझे याद आ गया एक बहुत जबरदस्त बुक की, जो बिल गेट्स में 1999 में लिखा था,
और Okay. बुक का नाम है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। तो Okay. मतलब 1999 में उन्होंने वो बुक लिखा था और उन्होंने बोला था कि जो आने वाले दिन है वहाँ पे सब पेपरलेस कॉन्सेप्ट रहेगा, ह्यूमन टच कम हो जाएगी। तो खैर बिल गेट्स तो विजनरी रहे हैं, हम सबको मालूम है। और देखिए मतलब क्या बखूबी से उन्होंने मतलब फोरकास्ट किया था और अभी सभी चीजें सामने आ रही है। तो ये डिजिटलाइजेशन के चक्कर में आपको क्या लगता है नए नए स्किल्स की जरूरत रहेगी हमारे स्टूडेंट्स में आने वाले दिनों में? अगर रहेगी तो वो कौन सी टाइप के स्किल्स आप लोग देखेंगे जब आप रिक्रूट करेंगे, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो या टेलीकम्युनिकेशन या एनी अदर सर्विसेज सेक्टर हो? देखिए अभी भी मैं जब इफ आई मीट टू द पीपल, लॉट ऑफ पीपल यूज टू मीट, वो आज भी डिजिटाइजेशन होने में घबरा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नो नो विल नॉट गो विद द बैंक ट्रांजेक्शन एंड ऑल, देयर इज अ थ्रेट वी कांट गो। द लॉट ऑफ पीपल से नो नो विल गो टू द शॉप एंड विल परचेज। और ऐसे आई एम टेलिंग यू पीपल हु आर वेल एजुकेटेड, पीपल हु आर वर्किंग इनटू गुड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे बैंक में है, पीओ है या बैंक में अच्छे एग्जीक्यूटिव है या एमएनसी में काम कर रहे हैं, आज भी वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो क्या वो ऐसे लोग सरवाइव कर पाएंगे? आपको लगता है वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे? जैसे कि आई एम टेलिंग यू in our industry there are everything is on app. Distributor can bill on through his app. There are lot of distributor who can't bill, still वो bill नहीं कर पाते हैं। there are people जो हमारे executives हैं वो उनकी help करते हैं। क्या वो distributor आगे survive कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बॉस आपको उस टेक्नोलॉजी को आई नो मुझे बताया जाता है एंड आई बीन द एग्जांपल ऑफ दैट, विटनेस हूँ उस बात का। दैट बॉस आप चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लो। इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट द चेंज यू विल नॉट सर्वाइव एंड इट इज वेरी ट्रू फैक्ट। इफ there is some difficulty to be 100% digitization, but you have to be। आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में कुछ पूछ ले ऐसी चीज की जो डिजिटाइजेशन में आ रही हो, बहुत अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, आप कैसे हमारा पैसा बचाओगे, कैसे मिनिमाइज करोगे मेरी कॉस्ट। लाइक देयर इज अ डेपो ऑफ एनी एफएमसीजी कंपनी एंड इफ यू गो टू फॉर एनी इंटरव्यू विद हिंदुस्तान लीवर्स, a person can ask you, boss please tell me how I can minimize my cost from depot to the distributor point and from distributor to retailer point, what you can do best। Now everything is available, apps are there, apps order और सब आ रहा है, फिर भी he wants कि there is a cost of 25 lakhs, how you can minimize by 5 lakhs by using the new technology। So these are the things which you need to think and prepare। कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नई चीज आ सकती है। जैसे कि there are 50 people reporting to me, how can I know that everybody is present at the field at 9:30? There is an app, but if I don't use it, how will I know? Or if a person at the field is not using, because उसे लगता है ये बोरिंग काम है, मैं क्यों यूज करूं? While that app can give him all the pictures of his work, of his business, routine, daily, month, activity, year. Everything can be given from his market to that app, but he is not interested। He is only interested कि मुझे तो एक्सेल की रिपोर्ट आएगी, I will see and I will do। So he is not doing justice because the report which he can get at the time, FTD reports for the day, for the time, why he is not using it? Suppose he can use it, he can increase his productivity, which is not using। So I just want to say, why I have given the example, because there are people who fear to use it। Please don't fear, adopt technology। If you want to give the orders from the mobile, please do that, just for trial, see what happens, just do that। Don't, if you want to use the money from the credit and debit card, I'm not saying any fraud link with the company, please do that, understand how it works, what is doing, what is the time saving, how you can utilize the time saving which is there, how you can use your productivity by saving the time। So these are the small things I think everyone should see and increase the productivity by using the digitization surrounding
adopt the teacher addiction 100%. Don't run away from it. Exactly. What you have said, Saurabh, is very relevant, and you have highlighted one thing which is of utmost importance for all professionals, for all students, and that is accepting technology at the earliest. क्योंकि हमने भी देखा हुआ है टीचिंग एंड लर्निंग में जो इतने सारे बदलाव आई है अभी, वो अच्छे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आज से 10, 15, 20 साल पहले शुरू कर दिए थे। चाहे वो ई लर्निंग हो, चाहे वो ब्लेंडेड लर्निंग हो, चाहे वो हाइब्रिड लर्निंग हो। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा घस चुका हूँ खुद को पहले, तो ये जो हालात आया है वो हालात में मेरे को मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। मज़ा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पहले पापड़ बेल चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा मसाला डालने वाली बात रहती है। और ये जो आपने बताया है हर प्रोफेशन में ये चीज़ की ज़रूरत रहेगी, मैं समझता हूँ। हमारे यहाँ पे फास्ट फूड्स जो डिलीवर हो रहे हैं उसमें 0% ह्यूमन टच है, राइट फ्रॉम द टाइम इट इज प्रोड्यूस टिल इट इज डिलीवर्ड। और उन लोगों ने ऐसा ऐप के जरिए किया है, वो ऐप पे रियल टाइम पे आपको दिखाएंगे आपका पिज्जा बन रहा है, वो पैकेजिंग हो रही है, गाड़ी पे तैनात हुआ है, गाड़ी चल रहा है, घर के सामने आ गया। तो यकीन माने, मतलब कौन खुश नहीं होगा ये सब चीजों से। हमको ये चीज समझना चाहिए कि भाई कस्टमर क्या चाहता है, ये नहीं कि हमें कौन सा करने में मजा आ रहा है। कस्टमर अगर चाहता है 1 + 1 11, तो हमको 1 + 1 11 देना चाहिए, ऐसा नहीं 1 + 1 2 करना चाहिए। बिल्कुल मानता हूं मैं आपसे। एक आखिरी सवाल बिफोर वी ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन आंसर। Saurabh, one message if you are supposed to give to the teachers to change the mindset of the students, to make them more employable, to make them entrepreneurial, what would be that message from your end? I have only one message कि बॉस उनको जो है आज से ही ये बताना शुरू करिए कि बॉस what people are doing for their employment, if you can give the employment to the others, you have everything. So for that there should be some activities which should be the part of the course, और आप उसको वर्कशॉप जिसे बोल सकते हो, ऐसे वर्कशॉप करानी चाहिए जहाँ पर कि आप एंटरप्रेन्योर का कुछ टॉपिक्स दे दें या कुछ केस स्टडीज दे दें, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना खुद का एक दे कैन थिंक टू देयर ओन वर्ल्ड, if this is the case study, how I can become a good entrepreneur by using it. आप कुछ ना कुछ उसको एक्टिविटीज कराओ स्टूडेंट को, so that he will come out from the word of कि बस मुझे तो कैंपस इंटरव्यू में जाना है। I just want to say, boss, it is because a lot of teachers think it is not a good idea. I say it is a very good idea. Why a class 6 student cannot study management course? Why? I had visited the DPS Mani last week, and I met with the principal, and I talked to the principal. I said, why class 6 student cannot study management course? Why? He is managing everything. वो अपने टिफिन खुद खा रहा है, वो घर से टाइम पे आ रहा है, ड्रेस पहन के आ रहा है, इज मैनेजिंग एवरीथिंग। आप उसको क्यों नहीं स्टडी में डाल सकते हो? प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। डू 1 hour कोर्स फॉर मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड कि बेटा ये ऑल थिंग्स यू आर मैनेजिंग। सो इफ फ्रॉम द डे 1 क्लास 6 से विल स्टार्ट द थिंग, अब 12वीं तक पहुंचते वो एंटरप्रेन्योर बन चुका होगा आज। तो फॉर द टीचर्स, obviously they are very experienced and all sirs, मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे सबसे बोलूंगा, आप सारे स्टूडेंट्स को प्लीज इंडिपेंडेंट होना सिखाइए। प्लीज उनको ये ना लगे कि मेरे लिए ये कंपनी है, यहाँ नहीं रहूंगा तो मैं क्या करूंगा। दे बहुत अच्छी चीज है, दे शुड गो एंड दे शुड ज्वाइन द मल्टीनेशनल कंपनी। दे शुड फॉर द फर्स्ट 5 years, yes they should work with MNCs, but they should have the mind कि बहुत अगर हम कुछ अपना कर सकते हैं, वी आर वर्किंग फॉर अदर्स, व्हाई वी कैनॉट डू फॉर आवरसेल्फ। एंड मैं क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ? इसके लिए आपको कुछ छोटे वर्कशॉप कराने चाहिए, कुछ केस स्टडीज ऐसी बनानी चाहिए जो छोटे छोटे बिजनेसेस को लिंक करती है, और उसी में सारे स्टूडेंट्स अपने आंसर्स लें। और आप उसमें से देखोगे कि आउट ऑफ 10 देयर आर 2 or 3 people who are doing very good. It means they have entrepreneurship skills. If you will talk, it will come. If you don't talk, it will never come. They will go into orthodox study, campus interview, and all things will go like this.
please use it. Just do exam, just do take few example and relate with the student. आप एक हाफ एन आवर का समय किसी भी दिन निकालो और प्लीज इसको करो. मनी, आई एम ऑल्सो विजिटिंग टू जयपुरिया, लखनऊ. आई एम ऑल्सो गौरव सिंघानिया colleges. I have visited few months ago also. I have told students and faculties there, please allot 1 hour time in a week to the students to learn them for the entrepreneurship. Please do that. And I'm telling you, few faculties have started and they said, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है because they have something to do new thing. Yeah. This is all. सौरभ, मैं आपको भी बुलाऊंगा एक बार, हालात सुधर जाएंगे आपको मैं बुलाऊंगा और हम लोग कोलैबोरेटिव वे में काम करेंगे जरूर. ये चीज तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ. और मतलब ये सब डिपेंड करती है माइंडसेट के ऊपर. मैं एक टीचर हूँ, मैं कितना चलना चाहता हूँ, हाउ मच आई वुड लाइक टू वॉक, द एक्स्ट्रा माइल विल डिसाइड हाउ मच माई स्टूडेंट्स विल वॉक. और मैं अगर खुद ही सो रहा हूँ, मैं अगर खुद ही वाकिफ नहीं हूँ नए ऐप से या नए जरिए की टीचिंग से, खास तौर पे जो हम मॉडर्न जनरेशन के साथ जब डील करते हैं, व्हाट आई कॉमनली रेफर एज आईपैड जनरेशन. तो ये आईपैड जनरेशन को पढ़ाना और पुराने जनरेशन को पढ़ाने में जमीन आसमान की फर्क है. वो चौक लेके बैठ गए और बड़बड़ करने लग गए. 5 मिनट बच्चा गायब, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फिर तो बंद करके सो जाएगा, दूसरे काम में लग जाएगा. ये रिसर्च बोल रहे हैं. और मतलब ये बहुत जरूरी है ये सब चीजों को मतलब लाने की. तो मुझे लग रहा है कि आजकल के टीचर्स सब मॉडर्न हो गए बिकॉज सभी लोग घर से ही पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी सारे स्कूल कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीज है एंड वी आर अडॉप्टिंग इट. दैट इज वेरी गुड. बट थोड़ा सा मैं जितने भी मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं उनको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ये बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा आप बिल्कुल पढ़ाई कराओ, उनका 70-80% मार्क्स आना बहुत जरूरी है, नो डाउट. ये सब लगता है साथ में, बट प्लीज उनको थोड़ा सा अलग सिखाओ, उनकी लाइफ से उनको दुनिया जरूर बताओ कि बहुत. और एक एग्जांपल्स दे करके कुछ भी आप गेम्स आप कर सकते हो, वर्कशॉप के थ्रू कर सकते हो. आप देखोगे कि आप 2-3 लोग इंटरप्रेनर तैयार करोगे अपनी सिटी में. दिस इज माई कॉन्फिडेंस लेवल विच आई एम टेलिंग यू. बिल्कुल काफी रेलेवेंट है और वही दुनिया बोल रही है, वो दुनिया बोल रही है, रिसर्च बोल रही है. आई कीप दिस फ्लोर ओपन फॉर फ्यू मिनट्स. अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन पुट इट फोर्थ टू द एक्सपर्ट मिस्टर सौरभ वाजपेयी. एक सवाल आया है. दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम मंटू सूत्रधर. Montu, this is a question which is not relevant to this webinar. Quiz, मैं बंगाली में बोल रहा हूँ सौरभ, sorry for that. Quiz হবে কি না হবে, you better talk to your head of the department. এটা এখানে বলার না, এটা ওয়েবিনার হচ্ছে. যদি চাকরির ব্যাপারে কিছু তোমার জানার থাকে, ক্যারিয়ার অপরচুনিটিজ in the field of business management related, if you have any question you can put it forth. This is not the right platform, Montu, to put forth the question you have asked. I hope it is clear. और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं फ्रॉम आवर गेस्ट. Any questions and I will feel happy if somebody will ask anything. So please go ahead. And I think you can ask anything, nothing to shy. If it is relevant to me, I will answer. If it is not, I will pass. Or I will park. Okay, it seems there are no questions as of now. ये वीडियो तो फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे तो हो सकता है बाद में जब चर्चा होगी सवालात आएंगे तो अगर कुछ ऐसा रहा. Okay, there is a question which has come from Prantik Devnath, our teacher in charge for management department. और उनका ये सवाल है, how is BBA relevant for various government jobs? What is, sorry? How is BBA, Bachelor's of Business Administration, relevant for various government jobs? Government jobs. So, see, because I don't know more about government organization because I have not gone through that. But I see कि BBA से ऊपर कुछ ना कुछ और तो करना चाहिए because BBA just for bachelor and you should go for master degree. So if somebody wants to go for this, I think there are very less opportunities into this because all government organizations are also now very well digitization. अभी वहाँ पर क्लर्क और का भी काम है नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि BBA से बहुत कुछ होगा. कुछ ना कुछ टेक्निकल एजुकेशन पर्सन शुड लर्न
अपार्ट फ्रॉम बीबीए कुछ ना कुछ करना चाहिए. इट्स सिंपल ग्रेजुएशन, कुछ ना कुछ टेक्निकल और रिलेटेड कुछ स्किल्स होनी चाहिए उसमें. आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर हिम. एग्जैक्टली. और मैं और एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ. आज के ज़माने में खास तौर पे ये जो अभी हालात है और आने वाले दिनों में जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. और ख़ास तौर पे जब हम बिजनेस मैनेजमेंट ग्रेजुएट या कोई भी ग्रेजुएट की बात करें, सबसे बड़ा चीज़ जो 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 इम्पोर्टेंट रहता है करियर में वो है कि भाई जॉब में जाए और प्रॉब्लम आए एंड ही और शी स्टार्ट्स कंप्लेनिंग. अरे इतना प्रॉब्लम आ रहा है, ये आ रहा है. भाई प्रॉब्लम के लिए तो तुमको रखा गया है. प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए तुम्हें सैलरी दे रही है. अब वो प्रॉब्लम्स मार्केटिंग रिलेटेड हो या सेल्स रिलेटेड हो, डिपेंड करेगा आप कहाँ काम कर रहे हैं. अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी ज़रूरत नहीं है. तो खास तौर पे ये जो चीज़ है वो दिमाग में डाल देना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एक सवाल आया है सौरभ from Monisha Sarkar, and Yes. she asked, what are the opportunities for BBA, LLB students in this digitized generation, in this digitization setup? BBA, And how BBA, to get their awards? BBA LLB. BBA, LLB, हाँ, हमारा लॉ कॉलेज भी है. अच्छा, so good. I am also the student of law. So first of all, good thing you have asked. मुझे लगता है कि अगर आप लॉयर बनना चाह रहे हो तो आपको तो पता ही है कि सारे के सारे रजिस्ट्री ऑनलाइन होने लगी हैं. पहले तो हम लोग लाइन लगाते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. तो मुझे भी लग रहा है वही अच्छे लॉयर आगे जा पाएंगे तो चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे. लाइक उनकी कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिजिटल वर्ल्ड वन. बिकॉज आप जब डिजिटल वर्ल्ड में जाते हो ना तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन ही इंपॉर्टेंट होता हो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं. आप अगर डिजिटाइज स्मार्ट हो गए हो तो आप अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से रख सकते हो. आप नई चीजों से अपडेट हो सकते हो. इफ यू आर देयर इन द कोर्ट यू कैन लिंक एवरीथिंग. जो नए पैरामीटर्स आ रहे हैं ऑर्थोडॉक्स तरीके से आप काम नहीं करोगे. मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं अगर लॉयर बना after 3-4 years money, then I will be very good lawyer because I will be digitally very smart and I can beat any lawyer who is there at 50-55 years old. Because then I will say, boss, please read this. This is the current journal which has come. You don't know. You are referring for the 50-80 years old thing. So I think smart people are always be recognized. If you are smart, you are fully disguised, you are a good lawyer, you will always win. तो बिल्कुल आप चारों तरफ अपने निगाह रखते चलिए. स्मार्ट लोगों की जरूरत है आज लोगों को. बहुत 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 खूब बोले आपने आन जी. और अनीश सरकार का ये सवाल है, हिज लॉ बैकग्राउंड, यू नो BBA, any problem? Okay, because he has done his law and he is doing his BBA, so will that be a barrier? Barrier तो नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. और देखो आप, मैं आप सभी लोगों से एक चीज बोलूंगा बॉस. आप यू आर डूइंग LLB, यू आर डूइंग उस, प्लीज यूज दैट. उस डिग्री को यूज करो बॉस. प्लीज डोंट कीप इट. गो टू द कोर्ट. किसी के अंडर में कुछ काम करना सीखना शुरू करो. देखो व्हाट इज हैपनिंग सराउंडिंग. देन यू विल सी. देखो ऐसा कुछ नहीं कि आप घर में बैठे हो कुछ हो जाएगा. नथिंग विल हैपन. आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर जो लॉयर है कानपुर में, और आपको पता है उन्होंने छोटे से स्टैम्प की एक शॉप डाली कोर्ट में ही, वहां से काम शुरू किया. दे आर वेरी गुड लैड्स इन कानपुर. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दे हैव लर्न. तो आज के समय में तो आप बहुत जल्दी लर्न कर जाओगे. यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग देन ओनली. बिकॉज इट विल से कि मैं बैठा हूँ और कुछ हो जाए तो नहीं होने वाला बॉस. यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट. आपको सीखना पड़ेगा. क्या एक वकील जो है, एक लॉयर है, क्या वो अपने आप एक ऑफिस खोल के GST रिटर्न का काम नहीं कर सकता? क्या वो पैन और आधार का अपने आप से काम नहीं शुरू कर सकता? क्या वो डिफरेंट जो केसेस आ रहे हैं उनको नहीं ले सकता? बिल्कुल. तो आप जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप खुद कर सकते हो बॉस. आप अगर आप ये सोच रहे कोई आएगा और आपको बुलाएगा जॉब के लिए, नहीं. आप खुद कर सकते हो. आप इफ यू आर रेड वेल और उसकी ट्रेनिंग ले लो 1 साल. आप खुद अपना काम शुरू करो बॉस. आई एम टेलिंग यू, आपका लाइन लगी होगी GST रिटर्न करने वालों की. बॉस ये तो बहुत अच्छे वकील है, ही नोज एवरीथिंग, आइए GST रिटर्न कराते हैं. एंड पीपल आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी.
lot of money, people are not going to the court, they are earning lot of money from their houses. And I'm telling you, it is true fact. बॉसेस, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज 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 थोड़ा सा एडवांस सोचो, थोड़ा सा सीखो, बाहर जा करके समझो, और आप देखोगे कि आप 2 साल बाद आप खुद अपना काम शुरू करोगे, बहुत किसी को आप पूछोगे नहीं. प्लीज डू दैट माय डियर फ्रेंड्स. सक्सेस इज देयर, सक्सेस विल बी देयर. एग्जैक्टली, मतलब ये चीज से हमको बाहर आना पड़ेगा कि भाई जो डिग्री हम कर रहे हैं वो डिग्री अपने आप एक नौकरी लाके देगा. वो दिन चला गया है. नो नो नो, डिग्री बिल्कुल नहीं देखना. मैं तो हमेशा कहता हूँ कि डिग्री एक गेटवे है, और उसी हिसाब से जो हमारे टीचर्स भाई बंधु है मेरे साथ वाले, हम भी इस चीज को मतलब बच्चों में ड्रिल डाउन करना पड़ेगा. हमारी जो अप्रोचेस है, क्लास में जाके पढ़ा के आ जाना, सिलेबस खत्म कर दिए, 60% मिल गया, फर्स्ट डिवीजन मिल गया, कुछ नहीं होने वाला है. कंपटीशन की दुनिया है भाई. अगर वाजपेयी जी को 10 बच्चे सामने मिलता है और उनको 3 ही चाहिए रहता है, तो जाहिर सी बात है कि 10 में से जो बेस्ट 3 है, और बेस्ट 3 मतलब जो वैल्यू एडेड फायदे उनको दे सकते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, उनको ही चुनेंगे. तो ये जब सिलसिला चल रहा है मार्केट में, मैं समझता हूँ कि इट इज नॉट ओनली योर एकेडमिक डिग्रीज, that piece of paper, no doubt that's important because that's the starting point. उसके अलावा बाकी सारे चीजें कितने हैं आप में, कितने काबिलियत है, कितने अपडेटेड आप हो, और खास तौर पे ये जो स्किल्स है आज के जमाने में, डिजिटाइजेशन स्किल्स, एम्पैथी, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब की बहुत अहमियत है. बेशुमार डिमांड है ये सब स्किल्स की ग्लोबली, क्योंकि इन्होंने वाजपेयी जी ने भी देखा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. My friends who are from the industry, I have verified it from them. यहाँ पे मैं काफ़ी अरसे से प्लेसमेंट्स भी देखता हूँ, इंटर्नशिप्स भी देखता हूँ, काफ़ी सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात होती है. तो ये सब कॉमन प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये साइकोलॉजी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ. वन लास्ट क्वेश्चन यू कैन टेक. मनी आई वांट टू ऐड, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, एक चीज में और सबको ऐड टाइम है. और माय फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, जैसे कि मुझे याद है कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने से बहुत ही घबराता था. हाँ जी. और मैं हमेशा सोचता था यार ये तो इट्स ए वर्क ऑफ बेगर, मतलब ये मेरी सोच थी. आई एम टेलिंग यू, प्लीज डोंट गो विद द वर्ड्स. मेरी सोच मैं बता रहा हूँ. यार आप किसी के पास जाते हो और पैसे मांगते हो कि बॉस आप पॉलिसी करा लो. दीज आर काइंड ऑफ पीपल एंड अक्रॉस यू नो आफ्टर कोविड व्हाट हैज हैपेंड. बॉस इंश्योरेंस के लोगों को भगवान की तरह पूछते हैं लोग. क्यों? बिकॉज जो वो हेल्थ पॉलिसीज कर रहे हैं, आज लोगों को पता चलता है कि भाई हेल्थ पॉलिसीज आर इम्पोर्टेंट आफ्टर कोविड. नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि वाई टर्म प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि वाई इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट. देयर इज ए ह्यूज बूम इन इंश्योरेंस सेक्टर. आपको मैं बताता हूँ कि जो एक इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांच मैनेजर, yearly salary will be 20 lakh rupees per annum. उसकी ब्रांच में जो एजेंट होता है, जो किसी सेल्स मैनेजर के नीचे जाके इंश्योरेंस सेल करता है, एंड ही इज नॉट 10th or 12th पास. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ही इज MBA, he is an engineer, he is earning 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh rupees per month. He is not reporting to anyone. He has his own opening of office. He has taken all the agencies under one umbrella. And जब वो किसी कस्टमर से कॉल करता है ना बॉस, तो इंश्योरेंस के सेल्स मैनेजर को बुलाता है कि बॉस कम टू मी बिकॉज दिस बिजनेस विल गो टू यू. कम एंड कॉल टू द कस्टमर. एंड द margins which are coming 50%, 30%, 20% margins goes to agent. This is the opportunity which to look. And please don't shy. I have so many friends who have worked 10 years, 15 years. Now they are agents of LIC and they are earning 3 lakhs in a month. Please understand. I just want to add. मैं आप लोगों को हर चीज बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को हर चीज दिखा रहा हूँ. कुछ लोगों को ये आज तक बहुत छोटा लगा होगा, बहुत खराब लगा होगा. मैं सबसे कह रहा हूँ, आज जाके काम नहीं करना है, बट ये सोचना है. आज जाके आपको अच्छी कंपनी में नौकरी मिलती बिल्कुल करना है, बट सोचना जरूर है, देखना जरूर है, समझना जरूर है, मानना जरूर है, बात जरूर करनी है. इफ यू डू दैट, आप खुल जाओगे पूरी तरीके से. और जब वो खुल जाओगे ना बॉस, तो आप 5 साल बाद कहोगे बॉस मैं कर लूंगा, आई विल बी सक्सेसफुल. प्लीज डू दैट. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. दिस इज माय एक्सपीरियंस व्हिच आई एम कोडिंग हियर.
या सॉरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। और मेरा एक परम मित्र है नागपुर में, मोहनलाल जी, जो मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर भी है। REC सूरत कल के पास आउट है माइनिंग में उन दिनों। और उसके बाद सेसा गोवा में जॉब लगी थी उनको। सेसा गोवा उन जमाने में बहुत बड़ी कंपनी हुआ करता था। अब है मारवाड़ी भाई हमारे, तो मारवाड़ी भाई के दिल में तो धंधा घूमता है। 2 साल 1.5 साल काम करके आ गए नागपुर वापस, जीरो से, जो आपने बोला LIC के एजेंट से शुरू किए हैं। और आज के डेट में वो इंडिया के टॉप 10 LIC एजेंट्स में से है। उसके अलावा ढेर सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के एजेंसीज लिए हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के। और कम से कम गिरे से गिरे हालत में महीने का 10 लाख 15 लाख रुपए कमाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मर्जी के मालिक है, गाड़ी उठाता है, चलता है काम पे, नहीं जाना है नहीं जाते, फोन पे काम हो जाते हैं। तो ये सब जो किया है इन्होंने, खास तौर पे जो वाजपेयी जी ने बोला है कि काफी सारे मेहनत हुई है इसके पहले। तो ये जो पहलू हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी के रिलेटेड हमारे प्रोफेसर सुजय शाह ने होटल मैनेजमेंट कॉलेज के एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, और जो अक्सर हमको सुनने में मिलता है, एंड दैट इज स्टूडेंट्स आर ओनली थिंकिंग अबाउट मनी 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 मनी। They do not care about the regrofying which is required. भाई मनी ऐसा हवा से नहीं आता है, चेहरा देख के नहीं देता है। IIT वाले को भी मनी ऐसा IIT के बलबूते पे नहीं मिलेगा। हो सकता है उसको रिक्रूटमेंट हो जाएगी, उसके बाद जाके उसको वहां पे एक्चुअली करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, तब जाके पैसा आएगा। तो इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखो मेरा सिर्फ माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू से कि मैंने तो पहली जॉब 3000 रुपीज से शुरू की थी। आई डोंट शाई टू टेल, ठीक है। तो मैं तो पैसा नहीं सोचता था बॉस, बिकॉज मुझे पता था कि आप ही से तो मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा नहीं। द एक्सपीरियंस विच विल एड मी वैल्यू, एंड आई नो बिकॉज स्ट्रेंथ आपको आपकी पता है बॉस, ध्यान रखिएगा। एवरीबडी नोज स्ट्रेंथ करना क्या है उसे और कैसे करेगा। मुझे तो पता था कि आई एम ए डिलीजेंट बॉय, आई हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, मुझे बस एक पटरी मिल जाए फिर तो मैं ट्रेन दौड़ा दूंगा। दैट वाज माय कॉन्फिडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वही चीज आपको सोचनी है बॉस। आप ये सोचते हो कि मैंने MBA कर लिया, मैंने LLB कर लिया, मैंने BBA कर लिया, तो मैं आज किंग हो गया या राजा हो गया। बॉस ऐसा नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। आप नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। आपको आप आज से मैं पैसा कमाने लगूंगा ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा क्या हो गया जो आप कमाने लगोगे? बॉस आपने तो कुछ किया नहीं, आप तो पढ़ के आ गए हो। हाँ हो सकता है, मैं आई एम नॉट डिनाइंग कि उसमें तो कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं जो कर ले जाते हैं। हमारी तरीके से कुछ मेहनत करते हैं, मनी की तरीके से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो परसेंटेज ज्यादा होता है। तो मैं बहुत इंटेलिजेंट लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। यस दे आर गॉड गिफ्टेड, अच्छा करते हैं, उसमें भी हमारे पास लोग होते हैं। बट हाँ, जो पोटेंशियल लोग हैं, जो धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं और अपने पोटेंशियल से बढ़ते आगे बढ़ते हैं, उनको अभी ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। यस, आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, एक ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं नहीं हो सकता, आप अगर अपनी स्ट्रेंथ को क्यूमुलेटिव सही और पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दोगे तो ऐसा 1 साल में क्या 6 महीने में भी हो सकता है। हो सकता है आप कुछ इस कोर्स के दौरान जब आप पढ़ रहे हो कुछ ऐसा कर ले जाओ, आपके टीचर्स ने बताया कि आप बिल्कुल डिफरेंट स्टूडेंट बन जाओ और जाते ही कुछ नया ऐसा करो कि आपका CTC बाकी लोगों से अलग हो सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग इट। क्वेश्चन इज वेरी गुड, जिसने भी पूछा है, जो भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं या जो भी टीचर ने पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम अपने को 360 डिग्री घुमा देंगे, मतलब अपना पोटेंशियल अपनी इतना एक्यूमुलेट कर लेंगे, इतनी स्ट्रेंथ अपनी डेवलप कर लेंगे कि हमारे आगे वाले बिल्कुल कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम कुछ करें नहीं या डिग्री के बाद कुछ हो जाए तो नहीं होगा। तो हमें सीखना पड़ेगा, अपनी लर्निंग्स कंटिन्यू करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेंथ को उस लर्निंग के साथ ऐड करना पड़ेगा, उस लर्निंग में अपने पोटेंशियल को मिक्स करना पड़ेगा, और साथ में जब हम अपने टीचर्स के साथ मिलकर काम करेंगे तो वो डबल इम्पैक्ट करेगी। आप देखोगे, आप बिल्कुल, किसी को मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल जिसने ये सोचा होगा कि मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, यस यू शुड, और अगर ये चीजें कर लेगा साथ में ना, तो मेरी गुड विशेष बिल्कुल है, आप बिल्कुल कमाओगे। आप 2 गुना क्या 10 गुना भी कमा लोगे, बट ये छोटी छोटी चीजें करके। सही बात है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, किसी ने कहा है, सही कहा है। काफी सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। और so my thanks to the teacher who has asked this question. Is a very relevant question and practical question. ओके,
Okay, thank you, ladies and gentlemen, for this wonderful discussion, for facilitating this discussion. I'd like to take this opportunity to welcome our Secretary, Madam, Mrs. Uma Bhattacharya, to say something to the honorable guest speaker. Thank you, sir. Thank you, Lakshmi sir. कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा. स्टूडेंट लोग सीख रही. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mani. Thank you, Mani and ma'am, for giving the opportunity. And this platform, yes, no doubt, is a very good platform where teachers and students both are there. And the conversation which happened or which will happen in future also, that will definitely give lot of value addition in the further course of time. And I just want to add one thing to ma'am and all teachers, that please start thinking in a new way of living and new way of thinking, new way of doing the things with the students, so that you will see the change in the coming months very soon. I am there for any input with the Mani Shankar, and for anything Mani you can add me, for any input you can add me till the COVID is not over, and further if possible we can meet at the place there physically. Thank you so much. Right, we'll do that. Thank you so much. Mani signing off. Bye. Cheers. Thanks all. Bye.